সরকারি সফরে পাকিস্তান রয়েছেন বাংলাদেশের নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান। 2030 সাল নাগাদ 16টি যুদ্ধজাহাজ কেনার পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, যার প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সরবরাহের জন্য আলোচনা করছে পাকিস্তান। পর মেরিটাইম ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য করাচিতে অবস্থান করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ সমুদ্র জয়। 7 থেকে 11 ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হবে एक्सरसाइज AMAN 2025। दोस्तों, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना की बनाई हुई फ्रीगेट जो जदीद तरीन है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वो 16 के करीब जो फ्रीगेट है वो अब बांग्लादेश परचेज करने जा रहा है। बांग्लादेश के नेवल के जो चीफ हैं एडमिरल मोहम्मद नाजमुल हसन, वो पाकिस्तान के सफर पर थे, तो उसके ऊपर जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो सीख पा हुए हैं। उन्होंने जो कहा है वो सुनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करी আপনারা সবাই ভালো আছেন। आपको दोस्तों बताएं कि पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रीगेट है वो बहुत ही बनाई हुई मशहूर फ्रीगेट है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड फ्रीगेट है। अब बांग्लादेश ने फैसला किया है, बांग्लादेश की नौबानी ने, बांग्लादेश के नेवल चीफ ने, बांग्लादेश की हुकूमत ने, कि ये पाकिस्तान और जो चाइना मिलकर फ्रीगेट बनाते हैं वो एक दो नहीं भाई, बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा यानी 16 जो फ्रीगेट है अब वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना की ये बनाई हुई फ्रीगेट वो अब इंपोर्ट करने जा रहा है, वो अब परचेज करने जा रहा है। ये जो खबर है ये हिंदुस्तानियों के ऊपर कयामत बनकर गिरी है और ये जो खबर है हिंदुस्तानियों को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, बल्कि फॉरेन सेक्रेटरी जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि हम नजर रख रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश पाकिस्तान से क्या कुछ ले रहा है, चाइना से क्या कुछ ले रहा है, हम ये भी नजर रख रहे हैं कि नेवल चीफ पाकिस्तान गया है, वहां वो क्या कुछ कर रहा है। यानी इनको टेंशन तो है, इनको ये मसला तो है कि भाई कभी कुछ और ही ना हो जाए। अब पाकिस्तानी जा रहे हैं बांग्लादेश में, यानी पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिशियल्स, तो तब भी इनको बहुत ज्यादा चिंता है कि कोई डील ही ना हो जाए, कोई सीक्रेट कोई ट्रीटी ना हो जाए न्यूक्लियर को लेकर जो हमारी बैंड बजा दे। तो इसलिए इंडियन भाई साहब इस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो पहले देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लेकिन वीडियो देखिएगा 3, 2, 1 एंड क्यू। সরকারি সফরে পাকিস্তান রয়েছেন বাংলাদেশের নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান। শুক্রবার নেভি চিফ পরিদর্শন করেছেন রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর। এ সময় পাক সেনা প্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। এছাড়াও মোহাম্মদ নাজমুল হাসানের সঙ্গে পাক নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল নাভিদ আশরাফ ও জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জার সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের বরফ গলার ক্ষেত্রে বৈঠকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া.com জানিয়েছে, 2 দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সামরিক কর্মকর্তাদের পারস্পরিক সফরের পেছনে রয়েছে চীন। ঢাকা তার সামরিক সরঞ্জামের 72% ক্রয় করে বেইজিং এর কাছ থেকে। তাই বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সুদৃঢ় সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব বাড়াতে সহায়তা করবে। 2030 সাল নাগাদ 16টি যুদ্ধজাহাজ কেনার পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, যার প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সরবরাহের জন্য আলোচনা করছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের গণমাধ্যমের তথ্য বলছে, বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থ, আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বিষয়ে 2 পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়। এছাড়াও গেল মাসে বাংলাদেশ সফর করেন পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ISI এর ডিরেক্টর জেনারেল অব অ্যানালিসিস মেজর জেনারেল শাহিদ আমির আফসার।
এর আগে গেল জানুয়ারিতে ইসলামাবাদ সফর করে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর এক উচ্চ পর্যায়ের দল, যার নেতৃত্ব দেন আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস.এম. কামরুল হাসান। এ সময় পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান জহির আহমদ বাবর সিদ্ধুর সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পাকিস্তানের আইএসপিআর জানিয়েছে, দুই দেশের সামরিক সহযোগিতা, বিশেষ করে বিমান বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। এছাড়াও কয়েক দশক পর মেরিটাইম ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য করাচিতে অবস্থান করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ সমুদ্র জয়। 7 থেকে 11 ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হবে এক্সারসাইজ AMAN 2025। এই ফ্লিট রিভিউতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন সমুদ্র জয়ের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলমের নেতৃত্বে 33 জন কর্মকর্তা, 58 জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা সহ 274 জন নৌ সদস্য। হাতের মুঠো থেকে ফসকে যাওয়া বাংলাদেশ ও চিরশত্রু পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির ওপর গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया, ये तो खैर बांग्लादेशी मीडिया की वीडियो थी, लेकिन इसके ऊपर जो इंडियन है वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो हिंदुस्तानी हैं और फिर जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो किस तरह से काफी चिंता है, उनको परेशान है और वो नजर रख रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर। ये कौन होते हैं बांग्लादेश के ऊपर नजर रखने वाले अंतभक्त? इनकी जरूरत कैसे हुई बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स में घुसने की, इंटरवेंशन करने की, मुदाखलत करने की? ये होते कौन हैं? यानी वो अगर बांग्लादेश अगर आपके ऊपर नजर रखे तो फिर क्या ठीक होगा? यानी बांग्लादेश अगर नजर रखे तो फिर आपको क्या तकलीफ नहीं होगी? और आप कौन होते हो बांग्लादेश के ऊपर नजर रखने वाले? उनका नेवल चीफ जहां मर्जी जाए, पाकिस्तान जाए, इंग्लिस्तान जाए, वो चाइना जाए, अब आपको तकलीफ है कि वो 16 जो फ्रीगेट है वो पाकिस्तान से लेने जा रहा है, चाइना और पाकिस्तान की बनाई हुई। फिर वो टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे, फिर बांग्लादेश वो खुद से भी बना पाएगा। 2030 तक ये 16 के करीब दोस्तों जो फ्रीगेट है अब बांग्लादेश के पास आ जाएंगी। बांग्लादेश की जो नौबानी है बहुत मजबूत होने जा रही है। और फिर नाजमुल हसन का विजिट जो सफर है पाकिस्तान का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो इंडियन को उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, इंडियन बुखलाए हुए हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान है कि भाई ये जो बांग्लादेश के नेवल चीफ गए हैं, कोई किसी खतरनाक किस्म की कोई डील ही ना करके आ जाए जो हमें परेशान कर दे। इसीलिए कह रहे हैं हमने नजर रखी हुई है बांग्लादेश के ऊपर, वो पाकिस्तान में क्या कर रहा है। भाई आप कौन होते हो? वो एक आजाद मुल्क है, वो अपने भाई के साथ, अपने बिछड़े हुए भाई के साथ अगर मिल रहा है तो शटअप, आपको शटअप कॉल दे देनी चाहिए और आपकी इतनी जरूरत नहीं है किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में घुसने की। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।